So I'll quickly go through the slides. So whenever in any slide you have a specific doubt, then please write in the chat. My chat box is open. So yeah, sequential and linearizability, I'll come to that. Okay. So first we just understood what is replication. We are making some copies of data in this particular context, and because there are multiple copies, so the problem is that they may not be consistent with each other. So first we had seen a particular model. Two kinds of models we have seen. One are data centric and the other are client centric. So when the data is being written by many users, by many processes, in that case, you want to maintain consistency with respect to the data. In those cases, the consistency models are called data centric. And in some applications, like your social media applications, you are not concerned with the entire database. Okay, you are concerned with the data which is specific to yourself. So your post, your feed, okay, so whatever it is as per your requirement. So in that case, we take care of consistency in terms of client-centric models. So first, seeing the data-centric models. First is strict consistency. Strict consistency, I hope everybody understands that whatever is the latest write operation, if any process reads the data later in time, actual time, it gets the same value which is written by the latest write operation. So because of the distributed nature of the systems, this might not be possible. So if you see the second example, there is a write operation that has taken place, but once another process reads it, it reads, it does not get that value. Okay. Later on, it again reads it, it gets that value which was written. So this is strict consistent. This is not strict consistent. So because you can't implement strict consistency in all scenarios, so you relax your requirements and then you keep relaxing them so that you get some kind of consistency which is enough for your application, but is not strict. ठीक है, हम strict नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, हम अपनी requirement को देखते हैं कि क्या हम उसको lower कर सकते हैं. तो उसमें हमने अलग अलग मॉडल्स किए हैं. सबसे पहले सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी. सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आप इस एग्जांपल से समझो. अगर एक से ज्यादा राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, सो यू हैव वन राइट ऑपरेशन विच इज डूइंग अ राइट ऑन द x वेरिएबल, changing it to a, another process is changing x to b, and this value is being read by two processes 3 and 4. okay, so दो, अब आप इसमें देखो, पहले a हुआ था, बाद में b हुआ था. 3 ने किस ऑर्डर में रीड किया, पहले उसको b मिला, बाद में a. 4 को भी इसी ऑर्डर में मिल रहा है, b और a. तो ये स्ट्रिक्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले हुआ था वो यहाँ पर बाद में मिल रहा है. लेकिन ये सिक्वेंशियल है. क्यों सिक्वेंशियल वर्ड कहाँ से आ रहा है, सीक्वेंस से, कि 3 और 4 दोनों को सेम सीक्वेंस में मिला है. ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें a फॉलोड बाय b, तो 3 को मिल रहा है b फॉलोड बाय a और इसको मिल रहा है a फॉलोड बाय b. तो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी में क्या है कि हम सिर्फ सीक्वेंस देखते हैं कि जिस ऑर्डर में रीड ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सेम ऑर्डर होना चाहिए. वो स्ट्रिक्ट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ये स्ट्रिक्ट होता तो ए को किसी ने बी से ओवरराइट कर दिया तो हमें सिर्फ बी ही दिखना चाहिए, बाद में कभी भी ए नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ए तो ओवरराइट हो चुका है बी से. तो वी शुड नेवर हैव गॉट दिस वैल्यू ए. ओके, सो दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट बट दिस इज सीक्वेंशियल. कि ठीक है, हमें किसी को भी स्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस ऑर्डर में मुझे मिल रहा है उसी ऑर्डर में दूसरे प्रोसेस को मिल रहा है. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है इफ अपडेट्स आर इन द सेम ऑर्डर. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी. तो अब सीक्वेंशियल में क्या है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस सेम होनी चाहिए. उससे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है लीनियराइजेबिलिटी. तो लीनियराइजेबिलिटी किसके बीच में लाई कर रही है, स्ट्रिक्ट के और सीक्वेंशियल के बीच में लाई कर रही है. अब स्ट्रिक्ट तो कह रहा है कि हमें ए और बी में से सिर्फ लास्ट वाला जो है बी मिलना चाहिए.
सीक्वेंशियल कह रहा है ए फॉलोड बाय बी मिले तो दोनों में ए फॉलोड बाय बी मिले, बी फॉलोड बाय ए मिले तो दोनों में बी फॉलोड बाय ए मिले। लीनियराइजेबिलिटी बीच की बात कर रहा है, वो ये क्या कह रहा है कि सीक्वेंस तो सेम हो लेकिन सीक्वेंस एक ही अलाउ कर रहा है। कौन सी सीक्वेंस अलाउ कर रहा है कि अगर आपने दो ऑपरेशंस किए, ऑपरेशन एक्स और ऑपरेशन वाई, दैट मींस रीड एक्स या रीड वाई या दोनों रीड एक्स, तो जिसका टाइम स्टैम्प कम है वो पहले होना चाहिए और जिसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है वो बाद में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक रीड ए फॉलोड बाय रीड बी, तो ए का जो टाइम स्टैम्प था वो कम था और बी का टाइम स्टैम्प ज्यादा था, तो आप एक ही अलाउ कर रहे हो विच इज ए फॉलोड बाय बी, आप बी फॉलोड बाय ए हटा दिया, तो ये दोनों के बीच में आ गया कि आप कुछ तो टाइम की बात कर रहे हो और कुछ सीक्वेंस की भी बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में क्या हो जाता है कि आप कुछ ऑर्डर को फिक्स नहीं करते कि टाइम के बेस पे ऑर्डर करना है या आईडी के बेस पे ऑर्डर करना है या किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे नहीं। Sequential only says that the order should be same at all the processes, but linearizability says order should be same and order is based on timestamps. Okay, and strict means no order nothing, जो भी latest है वही मिलना चाहिए। तो strict तो सच में strict हो गई, sequential weak हो गई और उन दोनों के बीच में आ जाती है linearizability। ठीक है, तो ये डिफरेंस है linearizability और sequential का। अब मैं एग्जाम्पल्स नहीं करूंगी इस टाइम क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो हम फटाफट से सारे मॉडल्स देख देते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, दो प्रोसेसेस है P1 और P2। अब इस क्वेश्चन में दिया है सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी इज मेंटेन, दैट मींस P1 को ये एग्जीक्यूट करना है, P2 को ये, लेकिन दोनों को सेम व्यू दिखना चाहिए कि पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ बाद में कौन सा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि हम क्या करें सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, बहुत सारे ऑर्डर पॉसिबल है। एक ऑर्डर हो सकता है कि दोनों को पता चला पहले x इक्वल टू 1 प्रिंट y, उसके बाद y इक्वल टू 1 प्रिंट x। ये भी ऑर्डर हो सकता है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 फिर प्रिंट y प्रिंट x। ये भी ऑर्डर हो सकता है x इक्वल टू 1 प्रिंट y देन। ओके, तो क्या ऑर्डर नहीं हो सकता, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये नहीं हो सकता x इक्वल टू 1 और प्रिंट x, है ना, क्योंकि अगर एक प्रोसेस में दो ऑपरेशंस हैं देन दे हैव टू फॉलो देयर ऑर्डर। किसी भी मॉडल में हम ये नहीं कर सकते कि प्रिंट x तो हो गया लेकिन y इक्वल टू 1 नहीं हुआ। ठीक है, सो वट एवर बी द मॉडल, चाहे हम स्ट्रिक्ट से लेकर वीक कंसिस्टेंसी में चले जाएं, एनी मॉडल, the sequence within a process you will never change. What can be changed? Sequence across the processes. तो अब sequential में मतलब बहुत सारे orders possible है, because sequential पे सिर्फ एक ही condition है that whatever is the order should be same as seen by P1 should be same as seen by P2. So if I say x equal to 1 print y, y equal to 1 print x, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल टू 1 प्रिंट y, y इनिशियली 0 था तो 0 प्रिंट हो गया, y इक्वल टू 1 प्रिंट x 1 प्रिंट हो गया। ओके, सो आउटपुट क्या आ गया 0 1। अगर हम ऐसे ही यूज करें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 प्रिंट y प्रिंट x, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 1 1। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y विल नेवर बी प्रिंटेड। तो अब कौन सी वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती है कि हमने x इक्वल टू 1 तो किया नहीं और सीधा प्रिंट y कर दिया। तो अगर मैं बोलूं आउटपुट 0 0, तो वी हैव टू सी वेदर 0 0 कैन एवर बी प्रिंटेड। 0 0 किस केस में प्रिंट हो सकता है कि ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गई, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई, बट x और y की वैल्यू चेंज नहीं हुई, सो दिस कैन नेवर बी प्रिंटेड। ओके, सो इसका आंसर है 0 0, 0 0 कैन नेवर बी प्रिंटेड। ओके, देन सीक्वेंशियल को भी हम देखते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट क्योंकि सबको सेम ऑर्डर में लेकर आना भी मुश्किल है, तो और कम कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि सब ऑपरेशंस को ऑर्डर में मत डालो, सिर्फ उन ऑपरेशंस को ऑर्डर में डालो जिनके बीच में कॉजल रिलेशन है। कॉजल रिलेशन वही है अपना हैपेंस बिफोर रिलेशन, तो किसी भी प्रोसेस के जो अपने स्टेप्स हैं अपने ऑपरेशंस हैं वो कॉजल होते हैं,
या फिर अगर एक्सप्लिसिटली दिया हो कि किसी के बीच में कुछ मैसेज पासिंग हो गया तो कॉजल होते हैं। तो सीक्वेंशियल में वी आर ट्राइंग टू पुट ऑल ऑपरेशंस इन द सेम ऑर्डर एट ऑल द प्रोसेसेस। अब हमने उस कंडीशन को रिलैक्स कर दिया, ठीक है, सब ऑपरेशंस को मत ऑर्डर में डालो, सिर्फ जो कॉजली रिलेटेड ऑपरेशंस है उनको डालो। तो कॉजली रिलेटेड हमें कैसे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर ये है P1 और P2 के बीच में, P1 ने x की वैल्यू कुछ राइट किया, P2 ने उसको रीड किया और फिर P2 ने राइट किया। That means there is a causal relation between these two operations. Which one? X changing to A, X changing to B. Okay. So if these two are in some causal order, then we want कि जहां पर भी A और B रीड हो वो किस ऑर्डर में रीड हो, जो कॉजल ऑर्डर है, पहले ए हुआ फिर बी हुआ। तो यहाँ पे देखो ए फॉलोड बाय बी, P4 पे भी ए फॉलोड बाय बी, ठीक है। लेकिन अगर हम बी और सी वाला देखें, x is being written to C, x is being written to B, there is no causality। कि कैसे पता चल रहा है कि causality नहीं है? बिकॉज B वाली वैल्यू तो इसने रीड ही नहीं की P1 ने, उसने तो अपना कुछ इंडिपेंडेंट राइट ऑपरेशन कर दिया। तो अगर हम सीक्वेंशियल की बात कर रहे होते तो बी और सी की जो भी सीक्वेंस है वो दोनों 3 और 4 पे सेम होनी चाहिए थी, बट अब हम सिर्फ कॉजालिटी की बात कर रहे हैं। तो ए और बी हमने आइडेंटिफाई किया कि कॉजल है, इनका ऑर्डर देखा ए फॉलोड बाय बी, ए फॉलोड बाय बी, सो ओके। बी और सी दे आर नॉट कॉजल, so in one operation, in one process they are being read in the order C followed by B, in the second they are being read in the order B followed by C, so there is no causality, so we don't check। okay, हमने check किसको करना है, जो causal थे, so this is not causal, so it doesn't matter। ठीक है, A and C, okay, where is A and C? This is A, this is C, yes, A and C are causal because they are within the same process। एक प्रोसेस में अगर देखो, कॉजल का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि डिपेंड करता है, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो अगर विद इन द प्रोसेस हो रहे हैं तो वो हमेशा कॉजल ही होते हैं। तो दोनों में ए फॉलोड बाय सी है, ए फॉलोड बाय सी है, ठीक है। तो ए और सी, यस, दे आर कॉजल बिकॉज दे आर विद इन द सेम प्रोसेस। ओके, अक्रॉस प्रोसेसेस कॉजलिटी मैसेजेस से होती है, विद इन द प्रोसेस इम्प्लिसिटली कॉजल होता है। ओके, अब कॉजल में हमने सब प्रोसेसेस के कॉजालिटी देखी। दो तरह की कॉजालिटी है ना, विद इन द सेम प्रोसेस जैसे हमने ए और सी देखा, अक्रॉस द प्रोसेसेस जैसे हमने ए और बी देखा। अब फीफो ने उसको और कम कर दिया, अक्रॉस प्रोसेसेस देखना भी बंद कर दिया। अगर विद इन द सेम प्रोसेस हुए हैं ऑपरेशंस तो उनका ऑर्डर देखेंगे, अगर विद इन द सेम प्रोसेस नहीं हुए हैं तो उनका ऑर्डर नहीं देखेंगे। अब आप देखो यहाँ पर ए राइट किया P1 ने, P2 ने उसको रीड किया और फिर बी राइट किया, तो हमें कॉजालिटी सेम मिल रही है यहाँ पर ए और बी की। दूसरी कॉजालिटी कहाँ पे दिख रही है कि बी ने P2 ने पहले बी लिखा और फिर सी लिखा। तो दो तरह की कॉजालिटी, एक P1 और P2 के बीच में और एक P2 के अपने ऑपरेशंस के बीच में। सो फीफो विल रिलैक्स फर्दर। वो क्या कह रहे हैं, क्रॉस प्रोसेसेस को भी छोड़ दो, सिर्फ एक प्रोसेस के ऑपरेशंस को देखो, बी और सी को। सो बी फॉलोड बाय सी, बी फॉलोड बाय सी, ओके। अब ए और बी के बीच में जो कॉजालिटी थी, यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर ए बी है, तो इनको भी नहीं देखा हमने। समझ में आ गया कैसे वीक होता जा रहा है। पहले सब ऑपरेशंस को देखते हैं तो सीक्वेंशियल, कॉजल को देखते हैं तो कॉजल, कॉजल में से भी अक्रॉस द प्रोसेसेस हटा दिया, सिर्फ विद इन द प्रोसेस देखा तो फीफो। ठीक है, तो फीफो और भी कम कर रहा है, सिर्फ विद इन द प्रोसेस जो हुए हैं बी और सी, सिर्फ उनको चेक कर रहा है। हाँ, बी और सी ठीक सेम ऑर्डर में आ रहे हैं तो फीफो हो गया। ठीक है, वीक कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रीड कर लेना।
वीक कंसिस्टेंसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि वीक कंसिस्टेंसी सबसे कम है, फीफो से भी कम चली जाती है वीक कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद दूसरे तरह के मॉडल्स हैं जो क्लाइंट सेंट्रिक है, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू वन क्लाइंट, ओके। अब तुम ये देखो, एक फाइल ऐसी है जिसको सब लोग सेम फाइल को यूज कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हमारे पास अपनी अपनी एक एक फाइल है, ठीक है, जिसपे हम रीड राइट करते हैं। तो अगर हम सब एक ही फाइल पे राइट ऑपरेशंस कर रहे होते तो हमारी कंसिस्टेंसी कौन सी यूज होगी, डेटा सेंट्रिक। बट अगर हम अपनी अपनी फाइल की कंसिस्टेंसी को ही देख रहे हैं कि मेरी अपनी फाइल कंसिस्टेंट है कि नहीं, तब हमारी कंसिस्टेंसी होती है क्लाइंट सेंट्रिक, ठीक है। तो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल को एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, इवेंचुअल। इवेंचुअल बिल्कुल कंट्रास्ट है स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी का। स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी क्या होता है कि जैसे ही अपडेट हुआ माई कॉपी शुड बी मेड कंसिस्टेंट विद इट। इवेंचुअल होता है कि ठीक है एकदम से नहीं हुई, ओवर द टाइम हो जाएगी, तो अगर कुछ देर अपडेट्स नहीं हुए तो आई एम श्योर टू गेट कंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल कॉपी। तो इवेंचुअल जो वर्ड है ना वो कुछ टाइम दे रहा है, तो स्ट्रिक्टनेस के ऑपोजिट हो गया कि इवेंचुअली आई विल बी consistent with the other replicas, okay। So if there is no update in absence of, अगर अपडेट होते ही जाएंगे तो वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होती जाएगी ना। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि अगर कुछ देर के लिए अपडेट्स नहीं हो तो all replicas will converge and become identical to each other, okay। तो इसके अलग अलग मॉडल्स हैं क्लाइंट सेंट्रिक के। सबसे पहले मॉडल आ गया मोनोटोनिक रीड्स। तो अब चार तरह के मॉडल यू हैव सीन इन द स्लाइड्स, मोनोटोनिक रीड्स, राइट्स, रीड फॉलो राइट्स एंड रीड योर राइट्स एंड राइट फॉलोज रीड्स। So what is the difference? The difference is that what is the application in which you are implementing a consistency model। कौन सी एप्लीकेशन है जिसका डेटा है, जिस डेटा को आप कंसिस्टेंट रखना चाह रहे हो। तो अब आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हर मॉडल के नीचे ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे पर्सनल कैलेंडर अपडेट्स, तो अब आप ये देखो कि आपने गूगल कैलेंडर में कुछ मीटिंग शेड्यूल करी है, ठीक है, आजकल हम सब कर रहे हैं वही चीज। अब मैंने शेड्यूल की और सपोज आई मूव एंड आई सी, और मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई, ये सब जो क्लाइंट सेंट्रिक मॉडल है ना ये इसी सिनारियो के लिए बने हुए हैं कि आप पहले एक रेप्लिका को एक्सेस कर रहे थे, जब आपकी कुछ मूवमेंट हुई या आपके एक जगह से दूसरी जगह गए, तब आप जिस, हमें नहीं पता चलता बिकॉज वही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की ट्रांसपेरेंसी होती है, बट बिहाइंड द सीन नाउ यू आर एक्सेसिंग अ सेकंड रेप्लिका। तो यूजर के लिए वो एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि उसको नहीं पता चले कि मेरी कॉपी चेंज हो गई है। तो नाउ सपोज आई शेड्यूल्ड अ मीटिंग इन द कैलेंडर एंड आई हैव मेड सम अपडेट टू द कैलेंडर, तो रीड करा। अब या फिर मेरे लिए कैलेंडर में जैसे तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा सपोज हम कोई गूगल कैलेंडर हम अपडेट करते जा रहे हैं, सो यू हैव रेड, नाउ यू चेंज योर लोकेशन एंड योर रेप्लिका गेट्स चेंज्ड। नाउ यू शुड सी अ व्यू which is an increment on what you have already seen। मोनोटोनिक क्या होता है, हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एक ही डायरेक्शन में, या तो इंक्रीज होता जाए या डिक्रीज होता जाए। तो हमारे केस में हम क्या बात करें कि जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जब नेक्स्ट टाइम हम रीड करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई प्रीवियस व्यू मिल जाए। जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं नेक्स्ट टाइम रीड करें, या तो सिर्फ उतना दिखे या फिर उसके आगे दिखे। तो अगर तुम्हारी 3 मीटिंग शेड्यूल्ड है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम तुमने कैलेंडर देखा तो वो गायब हो गई क्योंकि तुम एक पुराने रेप्लिका पे चले गए। तो उतना तो दिखे ही, प्लस अगर कोई फोर्थ मीटिंग भी तुम्हारे लिए सेट है तो वो भी दिखनी शुरू हो जाए। ऐसे ही एग्जाम्पल ईमेल सर्वर के लिए है। सो आई हैव ओपन्ड माय मेल बॉक्स ऑन माय सिस्टम टुडे, आई हैव सीन दैट आई हैव रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम द कॉलेज। अब अगर मैं रात को कहीं और लोकेशन तक ट्रैवल करके पहुंचती हूँ और वहां पे अपनी मेल चेक करती हूँ तो पता चले आज सुबह तक की मेल्स आई नहीं है, पुराना दिख रहा है, तो वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस आई लुक फॉर मोनोटोनिक रीड्स। ऐसे ही अगर हमारा एग्जाम्पल चेंज हो गया, हम ज्यादा राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम मॉडल कौन सा लगा देंगे, मोनोटोनिक राइट्स का। जैसे अब तुमने कहीं पर अपना प्रोग्राम अपडेट किया, ओके, एंड देन
और ये कोई फाइल अपडेट की। अब जब नेक्स्ट टाइम तुम अपडेट करने लगे तो तुमने देखा कि जो प्रीवियस अपडेट्स थी वो इस रेप्लिका पे तो आई नहीं, ठीक है। यू हैव मेड सम चेंजेस टू अ फाइल, यू हैव एडेड सम डेटा, नेक्स्ट टाइम यू आर अबाउट टू ऐड फर्दर टू द फाइल, तो आप देख रहे हो कि ये तो पुरानी वर्जन दिख रही है, जो मैं राइट्स कर चुका हूँ वो अब दिख ही नहीं रहे हैं। तो अब जब आप सिर्फ रीड ऑपरेशंस को कंसिडर करोगे, ऐसी एप्लीकेशन है, तो आपका ऑटोमेटिकली मॉडल बन जाएगा मोनोटोनिक रीड्स। अगर आप राइट ऑपरेशंस को कंसिडर करोगे तो मॉडल बन जाएगा मोनोटोनिक राइट्स, ठीक है। तो मॉडल कौन सा अप्लाई हो रहा है या किसकी रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप सिर्फ रीड ऑपरेशंस कर रहे हो, सिर्फ राइट ऑपरेशंस कर रहे हो, या फिर रीड और राइट दोनों कर रहे हो। तो अभी जो पहला था वो सिर्फ रीड्स के लिए था, ये सिर्फ अगर आप राइट्स ही करते हो। और तीसरा मॉडल आ गया जब आप रीड भी करते हो और राइट भी करते हो। तो अगर आपने कुछ राइट किया, जैसे आपने अपना पासवर्ड अपडेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू लॉग इन, ओके, तो लॉग इन करते हुए आपका पासवर्ड मैच होगा ना डेटाबेस से, तो पहले आपने राइट किया था एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू रीड, so you should be able to read your rights. That means the next time you try to log in, on basis of which password you should be able to log in, जो आपने अभी अभी चेंज किया था, okay, read should always return the right by that process itself. जो हम डेटा सेंट्रिक थे उसमें हम मल्टीपल प्रोसेसेस देख रहे थे, P1 ने ये किया, P2 ने ये किया। अब हम एक ही प्रोसेस, एक ही क्लाइंट की बात कर रहे हैं। एक प्रोसेस ने जो राइट किया, अगली बार अगर वो रीड करे तो उसको अपना राइट दिखना चाहिए। मैंने अपना पासवर्ड अपडेट किया, अब मैं कहीं और से लॉगिन कर रही हूँ और फिर मैं अपना नया पासवर्ड डाल रही हूँ और वो नहीं चले, दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू रीड व्हाट आई हैव रिटन अर्लियर, ओके। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि हम पहले रीड करें बाद में राइट करें। चारों केसेस हो गए ना, रीड्स, राइट्स, ओके, पहले रीड फिर राइट या राइट फॉलोड बाय रीड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कुछ रीड किया, उसके बाद आप उसके बेसिस पे कुछ राइट कर रहे हो। जैसे हमारे पास कोई न्यूज ग्रुप है, न्यूज ग्रुप क्या है कि कुछ पोस्ट आ रही है, बेस्ड ऑन दैट यू आर पुटिंग सम कमेंट्स, you are forwarding that, so my right is following what I have read. अब आपको कोई फ्रेंड देख रहा हो, उसको आपका कमेंट तो दिख रहा है और आपने जिस चीज के ऊपर अपना कमेंट किया है वो नहीं दिख रहा हो, तो क्या हो गया, that your rights are not following your reads. तो आपका जो कमेंट है, that means जो आपने राइट किया, it should appear after what news you have read, okay, rights should come after the read. तो अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे आप पहले रीड करते हो फिर राइट करते हो, तो आपका मॉडल बन जाएगा राइट फॉलोड रीड्स। सो द मेन थिंग इज first understand what are the models, then you have to understand that in which application what are the operations that you are doing. अगर कोई ऐसी स्टैटिक सी वेबसाइट है जहां हम सिर्फ रीड ही कर रहे हैं तो हम हो सकता है सिर्फ रीड्स को कंसिडर करें। इफ आई एम ओनली डूइंग चेंजेस इन प्रोग्राम, सो आई ओनली कंसिडर राइट ऑपरेशंस। नॉर्मली दोनों करते हैं, रीड्स और राइट्स, तो पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी मॉडल हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक तो हमने ये किया था, उसके बाद हमने अपडेट मॉडल्स किए थे जिसमें हाँ ये था, so there are models in which you have a primary। तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं कि ये कोई डेटा फाइल है, कोई डेटा स्टोर है और ये उसके रेप्लिकास हैं। ये जो R और W दिख रहा है ये रीड और राइट ऑपरेशंस हैं। तो एक सिंपल फॉर्म क्या होती है कि हमारी एक प्राइमरी बनी हुई है, प्राइमरी इज द मेन कोऑर्डिनेटर टाइप रेप्लिका। तो जब भी कोई रीड ऑपरेशन आता है या कोई राइट ऑपरेशन आता है, सॉरी, कोई client wants to write, so that write operation goes directly to the primary, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक था कि आपने सिर्फ ये ट्रैफिक हैंडल करने के लिए सर्वर बना दिए, पर कोई भी राइट ऑपरेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब मेन सर्वर पे अपडेट हो गया एंड इट हैज गिवन एक्नॉलेजमेंट व्हिच गोज टू द क्लाइंट। सिमिलरली अगर हम रीड ऑपरेशन करते हैं तो रीड ऑपरेशन भी हैंडल ये कर रहा है, बट इट विल रीड इट फ्रॉम द
मेन सर्वर। ठीक है, तो एडवांटेज इसका दिख रहा है कि सब कुछ एक ही कॉपी से आ रहा है तो हमेशा कंसिस्टेंट मिलेगा। बट डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि हमेशा आपको एक पॉइंट पर आना पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स आर नॉट वेरी स्केलेबल। ओके, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ बैकअप ही लिखा है। ठीक है, फिर हम अपने पास लोकल राइट प्रोटोकॉल्स पे आ जाते हैं। लोकल राइट में क्या होता है दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द प्राइमरी यू ब्रिंग द डेटा आइटम टू योर लोकल मशीन। तो यहाँ पे रीड या राइट जो भी ऑपरेशन हुआ तो आप चेक करते हो कि इस टाइम पे प्राइमरी कौन है, वहां से डेटा को फेच करते हो। अब नया प्राइमरी कौन बन जाएगा, ये नया प्राइमरी बन जाएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं लोकल राइट। है तो इसमें भी प्राइमरी बेस्ड बट दिस इज कॉल्ड लोकल राइट। रिमोट राइट कब हो रहा था, जब राइट ऑपरेशन यहाँ हो रहा था। ठीक है, जो भी सर्वर एक ही सर्वर था। अब लोकल राइट में आपने क्या किया, आपको रीड करना है तो आपने ढूंढा कि करंट सर्वर कौन सा है, उससे डेटा को फेच कर लिया। इसका एडवांटेज कब मिलेगा, अगर आपको बहुत सारे राइट्स करने थे। सो द डेटा इज विथ यू, यू कैन कीप ऑन अपडेटिंग एंड रिटर्निंग द रिजल्ट टू द क्लाइंट। बट सपोज एट द नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी और को चाहिए, यहाँ पर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट आ गई तो फिर ये डेटा को फेच करने की कोशिश करेगा और दिस विल बिकम द न्यू प्राइमरी। ठीक है, देन दिस इज अनदर वर्जन ऑफ द सेम। Okay, so primary backup local write protocol is applicable in mobile computers that are able to operate in disconnected mode. तो ये जो अभी हमने देखा लोकल राइट, ये डिस्कनेक्टेड मोड में मोबाइल सिस्टम्स को कैसे हेल्प करता है कि जब आप डिस्कनेक्टेड हो आप लोकल चेंजेस करते रहो अपने में, और जब आपके पास कनेक्शन आ गया तब आप बाकी सिस्टम के साथ कनेक्ट होके बाकी को अपने अपडेट्स दे सकते हो। ठीक है, देन एक्टिव रेप्लिकेशन इज पॉसिबल वेयर यू हैव कंप्यूटेशन पावर एट ऑल द रेप्लिका। सिर्फ डेटा ही नहीं है, स्टोरेज ही नहीं है, यू ऑल्सो हैव कंप्यूटेशन पावर। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि डेटा की अपडेट नहीं भेजते हैं, whatever is your operation, that operation is carried out at all the replicas. So this is mostly in object based systems. तो यहाँ पर क्या होता है, तो अगर ये तीन रेप्लिका है, तीनों के पास ये ऑपरेशन आएगा, तीनों में ऑपरेशन सेम ऑर्डर में हो जाएंगे and then you will have always the three will be consistent with each other. And the last one was a quorum based protocol. उसमें तुम्हें ये दो याद रखने हैं rules, that number, so we are not updating all the replicas, not reading from one replica, but we are updating n r number of replicas, we are writing to n w number of replicas. तो ये दो रूल्स अगर फॉलो होंगे तो आपको हमेशा कंसिस्टेंट वैल्यूज ही रीड होंगी। तो यहाँ पर देखो, we have written to 10 replicas and we are reading from any 3। ठीक है, तो ये सिर्फ नंबर है, कोई सीक्वेंस नहीं है। यू कैन राइट टू एनी 10 एंड यू कैन रीड फ्रॉम 3। तो अब अगर हमारा रीड प्लस राइट 3 + 10 इज ग्रेटर देन 12, यहाँ पे 12 रेप्लिकास है ना टोटल, तो 12 से ज्यादा बढ़ गया तो ये सी हमेशा एक कॉमन आ जाएगा कि जो अपडेटेड वैल्यू है। तो आपने इन 10 को राइट किया, इन 2 को छोड़ दिया। अब आप वर्स्ट केस में 3 से रीड कर रहे हो तो 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं जो अपडेटेड ना हो, एटलीस्ट 1 विल बी कॉमन, so that is why you will get the correct value. Then if you see this one, you have read you have written to all 12, in that case ये trivial case है, you can read from anyone. बट ये वाले में आप देखो आपने क्या किया, आपने 6 पे राइट किया and then you are reading from 7, so 6 and 1 7, so you are getting this one value which will be okay consistent. So this is about it. आप फटाफट से पूछ लो अपने डाउट्स क्या है। सीक्वेंशियल और लिनियराइजेबिलिटी हो गया, और कोई इसमें स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो, यू कैन राइट इन द चैट और क्विकली से इफ यू वांट।
Ankur, which one? Slide which one? Slide 17. Okay. This one. Yeah, this is A followed by B. दो हो रहे हैं और इसको B मिला, इसको B followed by A मिला. तो इस केस में क्या है बच्चा? बिकॉज यहाँ पर A नहीं आ रहा, बट B जो है वो ये भी तो है. A followed by B, this is B followed by A. तो ये तो नहीं है sequentially consistent. इसमें क्या समझ में नहीं आया? See, A was done before B. Okay, this one has read A followed by B. This one has read B followed by A. So this is not sequentially consistent. युक्ति सबके आंसर देने मुश्किल है बेटा. मेरे बहुत सारे माइनर के वाइवास शेड्यूल्ड हैं, सबके आंसर नहीं दे पाऊंगी. अगर किसी पर्टिकुलर का पूछना है तो मेरे से पर्सनल विंडो पे शाम को पूछ लेना. आई एम फ्री आफ्टर 4. तो आफ्टर 4 वैसे तो आई थिंक सबके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ओके, दिस 130 y is equal to 1, x equal to 1, y equal to 0, kill p2. तो फीफो कंसिस्टेंसी में क्या होता है ना, दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं. दैट मीन्स p1 जिस ऑर्डर में कर रहा है और p2 जिस ऑर्डर में कर रहा है वो डिफरेंट हो सकता है. तो अगर p1 इस ऑर्डर में करे x equal to 1, y equal to 0, kill p2, और p2 इस ऑर्डर में करे y equal to 1, x equal to 0, दैट मीन्स दोनों को ऑर्डर एग्री होना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 1 करने के बाद p1 का ऑर्डर हो गया 1 2 3 4 और p2 का ऑर्डर हो गया y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, तो दोनों को ऑर्डर एग्री नहीं कर रहा है, तो ये p2 को किल कर देगा और ये p1 को किल कर देगा. तो इसका आंसर है यस, बोथ प्रोसेसेस कैन बी किल्ड इफ इट इज FIFO कंसिस्टेंसी. ऑलराइट, Rachit कह रहा है share the exam. Okay, then 32 also. Okay, 32. X equal to 1. Read x equal to 1, x equal to 0. Yeah. Question इसका next slide पे होगा. Do the reads and writes satisfy sequential causal? अच्छा, sequential में देखो 1 फॉलोड, दिस सेम है जैसा 17 स्लाइड वाला था, 1 फॉलोड बाय 0 और इसने सिर्फ 1 किया, तो हम इसको बोलेंगे यस इट इज सीक्वेंशियल. ठीक है, अनलेस अंटिल हमें ऐसा दिखा होता कि ये 0 फॉलोड बाय 1 है, तब हम बोलते हैं नॉट सीक्वेंशियल, बट अभी वो तो नहीं दिख रहा, तो हम इसको सीक्वेंशियल ही करेंगे. कॉजल भी इसीलिए है क्योंकि ये दोनों सेम ही में थे और सेम ऑर्डर में अभी तक लिए चल रहे हैं, सो कॉजल भी है. अगर मुझे वायलेट करनी होगी तो आई हैव टू गिव सम एग्जांपल कि यहाँ पर इसने पहले 0 रीड कर लिया, यहाँ पर एक रीड लगा दो, रीड x इक्वल टू 0 एंड देन आई डू अ रीड x इक्वल टू 1, तो फिर कॉजालिटी और सिक्वेंशियलिटी दोनों ही हट जाएंगी. ठीक है, तो अभी के लिए इस दोनों का आंसर यस ही है. और तो अगर मैं क्लास में पढ़ा रही होती, मतलब विदाउट लॉकडाउन, अविष्का लिनिटाइजेबिलिटी दोबारा लेट आई थी तो हम में से कितने लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं? कोई भी नहीं. So online teaching is better. Linearizability means that order of sequential consistency which is according to time stamps. Okay, sequential means जैसे यहाँ पर है 1 followed by 0, ये भी allowed था, 0 followed by 1 ये भी allowed था, पर दोनों पे होना चाहिए था सेम ऑर्डर में. लेकिन अगर हम linearizability देखेंगे तो इसका टाइम स्टैम्प कम है, इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है, तो एक ही ऑर्डर अलाउ होगा विच विल बी 1 फॉलोड बाय 0. ठीक है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल सिर्फ बात करते तो 0 फॉलोड बाय 1 होता, इस पे भी 0 फॉलोड बाय 1 होता, वो भी चल जाता, बट लिनियराइजेबिलिटी इन दोनों में से एक ही ऑर्डर अलाउ कर रही है, वो कौन सा? 1 फॉलोड बाय